Good morning, all of you. How are you doing? I hope you all are doing good, right? So let's just start with our exercise 9.1, question number 3, which I have given you as homework. I hope everybody tried. Now let's just discuss what is there in this question. It is given in the question that in an election between A and B, A secured 9,740 votes. Votes, number of votes secured by A is given to you what? It is given to you 9,740. And 487 votes were declared invalid, which was 2% of the total votes. 2% of total votes were invalid. It is given in the question. And ये जो invalid vote है, this is percentage and numbers it is given to you 487. You need to find what percent of votes were in favor of B. Percent of votes in favor of A and percent, this you need to find, and percent of votes in favor of B. So just look here how we are going to do it. Dekho, we don't know how many total votes were there. So let total number of votes be x. जब भी whenever you need to find a variable, you need equation. Always remember, अगर आपको दो variables you need to find, then you need two equations. If you need one variable, if you want to find out one variable, you need one equation. हमको यहाँ पे ये तो निकालना है x. It means we need an equation. Equation means equal to sign we need whenever we talk about a polynomial with equal to sign or algebraic expression with equal to sign, we call it equation, right? So we need that to find out the value of the variable, right? So what is how do we do that? Just look here. एक वेरिएबल फाइंड आउट करना है, वी नीड वन इक्वेशन, राइट? आपको इक्वेशन मिलेगी यहां से, क्योंकि आपको परसेंट भी दिया हुआ है, परसेंटेज भी दिया हुआ है टोटल वोट्स का, और नंबर्स भी दिया हुआ है. सो 2% मीन्स 2/100 of total votes of x, total votes is x, is equals to 487. So x we will find it out here. X is equals to 100 divide में, उधर जाके multiply में होगा, and this 2 is in multiplication, so it will go in division here. So x you will get, x will be equals to what? 24,350. आप जब इसको solve करोगे you will get 24,350. I hope this is clear. ये तो total votes निकाले, पर हमको क्या निकालना है? Percent of votes in favor of A. देखो हमको votes तो पता है A को क्या मिला है, लेकिन हमें इसे percentage में convert करना है. Percent of votes in favor of A. आप किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो, कैसे कन्वर्ट करते हो? आप पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो एंड देन इनटू 100. और फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी चीज को? अगर आपको A को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, आप A ऊपर लिखोगे अपॉन टोटल. यही करते आए हैं हम फ्रैक्शन में. जैसे एग्जांपल देती हूँ, आपको शेडेड पोर्शन को कन्वर्ट करना है, तो शेडेड 1 है तो 1 न्यूमरेटर होगा और टोटल डिनोमिनेटर होगा. ऐसे करते थे. सिमिलरली whenever you are going to convert something into percentage, what you need to do, आपको कन्वर्ट किसको करना है परसेंटेज में? A ने कितने वोट सिक्योर किए, A के जो नंबर्स है वोट्स के, उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. सो A ने कितना सिक्योर किया? 9,740 एंड टोटल इनटू 100 कर दोगे तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, राइट? So that's how we are going to do it, right? So इसमें you will get, when you will solve it, you will get what? You will get 40%. Okay, I'm not showing you the calculation beta. Okay, I think you can do it. देखो ऐसे क्या है? 5 2s are 10, 5 4s are 20, 5 4s are 20. यहाँ पे बचेगा 4, 5 8s are 40, right? 5 7s are 35. यहाँ पे बचेगा 20. So 22s are 40%. यानी A के वोट्स कितने होंगे? परसेंट ऑफ वोट्स इन फेवर ऑफ ए विल बी 40%. अब परसेंट अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकालोगे. नाउ परसेंट of votes
फेवर ऑफ बी, हाउ वुड यू फाइंड इट आउट? देखो हमारे पास क्या है, 100% इज मीन्स आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 40% ए के हैं, 2% इनवैलिड है, यानी कि बाकी बचे हुए जो वोट्स होंगे वो बी के फेवर में होंगे। 100 माइनस 40 प्लस 2, 40 ए के फेवर में थे, 2% इनवैलिड थे, सो विच इज 100 माइनस 42। अंडरस्टूड? 100 माइनस 42% कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 4 58% votes will be in favor of B. Is that clear? Now question number 4 we have already discussed. Now question number 5 I am just discussing with you. Okay, when it's like till then I am I'm just clearing the board. I want you to read the question. Always keep book with yourself. आपको question समझ नहीं आएगा, आपको solution समझ ही नहीं आएगा. You always read your question before trying to understand the solution. So question number 5 is saying Rachit's income is 20% less than Ramit's income. Just look here. Rachit's, I am just writing it for you. Rachit's income is 20% less than Ramit's income. ये given है हमको. What is their next part? By how much percent is Ramit's income more than Rachit's income? Now देखो आपको परसेंट में किसको कन्वर्ट करना है? Ramit's percent of Ramit's income. We need to find how much percent is Ramit's income more than, देखो बेटा ध्यान से, Rachit's income, इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, हाँ? This we need to convert it into percentage, है ना? By how much percent Ramit's income is more than Rachit's income? It's a very easy question. देखो ध्यान से सुनना पहले ना. सबसे पहले Rachit's income is 20% less than Ramit's income. रचित इनकम 20% कम है, रचित की इनकम 20% कम है रमित की इनकम से, तो लेट रमित्स इनकम बी ₹100. एनी कंफ्यूजन? लेट रमित्स इनकम बी ₹100. तो रचित उससे 20% कम है, सो रचित की इनकम क्या हो जाएगी? 20 रुपीज कम है, 100 minus 20 which is 80. Any confusion? आपने 100 assume किया तो उसका 20% 20 होगा, तो 20% कम है, यानी अगर उसकी 100 है तो उसकी 20 रुपीज कम है which is 80. इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. Now just look here, not this one. Now they are asking Ramit's income more than Rachit's income. इसका उसको percent, what by what percent, ये you don't need to write this in your solutions, okay? ये तो मैंने सिर्फ आपको explain करने के. We need to find percentage of what? Of Ramit's income more than Rachit's income. पहले ये पता करो कि रमित की इनकम रचित की इनकम से कितनी ज्यादा है ना? 20. So Ramit's income is ₹20 more than Rachit. ध्यान से सुनिएगा, ये तो ठीक है कि इसमें यही तो बोला रमित की इनकम कितनी ज्यादा है रचित की इनकम से 20 रुपए ज्यादा है. अगर मैं बोलती कितनी कम है तो 20 रुपए कम है किसकी? रचित की. यहाँ पे बोल रहे हैं रमित इनकम कितनी ज्यादा है रचित से 20 ज्यादा है. इस 20 को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो नाउ परसेंट बाय विच रमित्स इनकम मोर देन रचित, वो आप कैसे निकालोगे? जस्ट लुक हियर, यानी मुझे कन्वर्ट करना है इस 20 रुपीज को परसेंटेज में, तो मैंने 20 लिखा, ये ज्यादा है ना? 20 रुपीज ज्यादा है. किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है? 20 रुपीज ज्यादा है, वो किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है? इन 80 रुपीज के रिस्पेक्ट में तो ज्यादा है. ये जो 20 रुपीज ज्यादा है वो किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है? तो यहाँ पे आएगा 80 into 100, 10 से 10, 2 4 8, 25%. So it means
Ramit's income is 25% more than Rachit's income. I hope this is very much clear to you. Again, I am telling you, इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा बदल देती, मैं तुमसे बोलती नाउ यू नीड टू फाइंड, अच्छा परसेंटेज तो इसमें दिया हुआ है, ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? क्योंकि इसके ऊपर वाला क्वेश्चन इससे थोड़ा सा ऑपोजिट था. अगेन आई एम टेलिंग यू, रचित की इनकम 20% कम है, किससे कम है? रमित से. तो रमित की ज्यादा है, 100 रुपए माने, तो रचित कितना हो जाएगा? 80. यानी अब हमसे जो पूछा जा रहा है, हमको पूछा है कि रमित की इनकम कितनी ज्यादा है रचित से, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो. कितनी ज्यादा है? 20 रुपए. इस 20 रुपए को परसेंटेज में करना है कन्वर्ट. तो परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे. 20 रुपए ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है? विद रिस्पेक्ट टू 80, है ना? 20 रुपए ज्यादा 100 के रिस्पेक्ट में नहीं. अगर 100 के रिस्पेक्ट में होती तो उसकी इनकम 120 होती. 20 रुपए ज्यादा 80 के रिस्पेक्ट में इंटू 100 किया, विच इज 25%. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, although it's a good question, I am just explaining. Sixth question, easy question is sixth question. I hope you can do it by yourself also, but still I am just discussing with you. Now question number 6, look here. Question number 6, they are saying the value of a house decreases every year by 10%. The value of a house decreases every year by 10%. If the value of the house is given to you, and value decreases, if this is also given, every year by 10%, we need to find value after 2 years. देखो क्लास, एक चीज पूछती हूँ. सपोज इसको थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, हमें ना थोड़ा इजी बनाते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू है. अगर मैं तुमसे पूछूं किसी भी चीज की वैल्यू 100 रुपीज है और हर साल 10% कम हो जाती है, तो पहले साल क्या होगा? 10% कम हो जाएगी, यानी 10 रुपीज कम हो जाएगी, 90 हो जाएगी पहले साल के बाद. सेकेंड ईयर में क्या होगा? 10% और कम हो जाएगी, पर वो 10% किसकी होगी? 90 रुपीज की. डिड यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल 10% कम हो रही है तो 2 साल बाद 20% ऑफ टोटल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता. देखो, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट. लुक हियर, वैल्यू ऑफ हाउस आफ्टर फर्स्ट ईयर. स्टार्ट करें. वैल्यू ऑफ हाउस आफ्टर फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर के बाद क्या हो जाएगी? आपकी 24,000, दिस इज 24,50,000 हाउस की कीमत है, इसमें से 10% कम हो जाएगा. 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ दिस. डिड यू अंडरस्टैंड? 10% कम होने का मतलब है, जैसे पहले 100 थी तो उसका 10% कम हुआ, 10 रुपीज कम हो गया. 10 रुपीज नहीं है उसकी प्राइस, 100 में से 10 कम हो गया, तो 90 होगी ना. सिमिलरली पहले हाउस की प्राइस थी 24,50,000, 10% अब कम हो गई है, 10%. 10 अपॉन 100% ऑफ व्हाट? ओरिजिनल वैल्यू, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? This is what? This is 245,000, right? Now let's just do the calculation. This is 0, second 0, third 0. Now 10 minus 5 is 5. We have 4 minus 4, 0. Then we have 4 minus 2, 2. So this is going to be the value of the house after 1 year, right? This is the value of the house after 1 year. Now next year, अब क्या होगा? अब नेक्स्ट ईयर, ये तो फर्स्ट ईयर के बाद होगा. नाउ वैल्यू ऑफ हाउस आफ्टर सेकेंड ईयर, यानी अब हाउस की कीमत ये है, ये नहीं है. अब जो 10% कम होगा वो इसके रिस्पेक्ट में कम होगा, यानी अभी हाउस की जो कीमत है
उसका भी 10% और कम हो जाएगा। 10% डिक्रीज हो रही है, 10% नहीं रह रही है कि 10% ही वैल्यू होगी, 10% कम हो रही है, इसलिए माइनस कर रहे हैं। 10% ऑफ this. Understood? When you will solve it, you will get 220,500. Then we have 220,500. Understood? So this is going to be the house after second year. समझे आप ऐसे नहीं कर सकते थे कि पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, 10% प्लस 10%, 20%. नो, आपका 10-20 ऐसा नहीं कि 10% शुरू में भी इसी पे था और सेकंड पे भी इसी ईयर पे था, नहीं। फर्स्ट ईयर में आपके हाउस की कीमत ये थी, तो उसके बाद 10% डिक्रीज हो जाएगी, तो ये बचेगी अब आपके। अब आपके हाउस की कीमत ये, तो अब जो 10% डिक्रीज होगा वो इस पे होगा। सो ये जो था उसमें से माइनस हो जाएगा 10% ऑफ दिस, सो यू विल गेट द answer. Now you need to calculate it by yourself. I hope this is very much clear to you, value of house after second year. Now third question, I'm so sorry, seventh question I'm just discussing with you. Now question number 7. Now question number 7 is what? They are saying A saves 14% of his salary and B saves 22% of his salary. Just look here. A saves 14% of his salary and B saves 22% of his salary. If both of them get the same salary, the salary is same, it's given क्योंकि salary same है, so let the salary be x, है ना, अभी assume करेंगे, और A saves ₹1,820, A की सेविंग दी गई और उनकी सैलरी सेम है, सो लेट देयर सैलरी बी x, पता नहीं है तो क्या करेंगे, लेट देयर सैलरी बी ₹x. Any confusion? Just look here. A saves 14% of his salary, B saves 22% of his salary, and savings of A is given to you कि उसने कितना मनी भी दिया हुआ है, परसेंटेज भी दिया हुआ है. देखो A का परसेंटेज अगर हम निकालें सेविंग्स का वो 14% है, और A अगर इन टर्म्स ऑफ रुपीस बात करें तो वो इतना सेव कर रहा है. आपको वी आर अज्यूमिंग दैट देयर सैलरी, टोटल सैलरी की ₹x. यू रिमेंबर मैंने अभी क्या कहा था, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इट मींस आई नीड एन इक्वेशन. इक्वेशन मींस इक्वल टू साइन. जस्ट लुक हियर, A की सेविंग परसेंटेज में दी हुई है और A की सेविंग मनी में भी दी हुई है, मनी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स भी गिवन है. सो जस्ट लुक हियर, लेट द सैलरी बी ₹x, दोनों की सैलरी A है. सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A 14% मींस दिस ऑफ टोटल सैलरी वो सेव करता है. 14% ऑफ टोटल सैलरी वो सेव करता है, तो नंबर्स में निकलेंगे अगर आप इसको सॉल्व करोगे. इसकी सैलरी वो आपको कितनी दी हुई है, वो आपको कितनी दी हुई है, 1820. Here you will get the value of x which is 1820 into 100 upon 14. I don't think आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ये 100 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा. सो नाउ जस्ट लुक हियर. नाउ इसको आप सॉल्व करोगे, you will get 2 7s are 14, 2 7s are 14, 2 9s are 18, 2 1s are 2, right? And then we have 7 1s are 7, 7 3s are 21, right? So his salary will be 13,000. ये तो टोटल सैलरी है, ये क्या है इन लोगों की टोटल सैलरी विच इज ₹13,000. फाइन. नाउ बी सेविंग्स, बी की सेविंग हमें 22% पता है, बी की सेविंग हमें 22% पता है. चाहो तो आप 22% ऑफ दिस टोटल जो भी हमारी सैलरी थी उसका सेव करता है, चाहो तो आप ऐसे निकालो, बी सेविंग्स is equals to 22% of total. टोटल अब हमको पता है जो भी आएगा 22 into 130, that is going to be B savings. I hope this is very much clear to you. Okay, now moving on to next question, which is our question number 8.
देखो क्लास, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। मीनाक्षी हैड सम मनी विद हर, शी गेव, सपोज उसके पास x रुपीज है, लेट मीनाक्षी हैज rupees x with her. She gave 50% of it to her daughter and 30% to her son. एक बात बताओ, परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100, उसने 50% डॉटर को दिया, 30% सन को दिया, तो उसके पास लेफ्ट मनी लेफ्ट आफ्टर गिविंग 50% टू डॉटर, टोटल का 50% to daughter and 30% to her son. क्या करोगे, 100 में से माइनस कर दो, 50 और 30 दे चुके हैं, यानी एक्चुअली उसके पास कितना बच रहा है, 20%। क्लियर? अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा प्लीज, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ना। शी डोनेटेड 60% ऑफ रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब क्या है यहाँ पे रिमेनिंग का मतलब है जो भी उसके पास पैसा बचा था, और कितना बचा था, 20% बचा था, उसने उसका 60% शी हैज डोनेटेड, राइट, शी हैज डोनेटेड 20% ऑफ रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब है 20%, राइट। सो शी डोनेटेड 60% ऑफ रिमेनिंग, यानी उसने डोनेशन कितना किया, डोनेशन विल बी इक्वल्स टू 60% ऑफ रिमेनिंग उसके पास 20% बचा है, 20% किसका, जो उसके पास टोटल मनी थी उसका। इज दैट क्लियर? डोनेशन इसने दे दिया, इसके पास 20% बचा है, किसका 20%, जो उसका टोटल मनी था, 20% ऑफ x, 20/100 ऑफ x, उसने डोनेट किया है 60% ऑफ 20/100 इंटू x, है ना। एंड अब उसके पास बचा कितना होगा, है ना, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए था ना। उसने डोनेट किया इतना, कितना डोनेशन कितना किया है उसने, 60% ऑफ रिमेनिंग विच इज 20% ऑफ x, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। हाँ ना, अगर उसने 60% डोनेट कर दिया बचे हुए का, तो कितना बचा, 40%, यानी मनी लेफ्ट आफ्टर डोनेशन, उसके पास कितना बचा होगा, 40% ऑफ 20/100। देखो अगेन आई एम टेलिंग यू, उसके पास मनी पूरी x रुपीज थे, उसमें से 50% डॉटर को दिया, 30% सन को दिया, तो उसके पास 20% बच गया, किसका 20%, इसका। अब ये पैसा बचा है उसके पास, अब जो भी वो कर रही है वो इस पैसे पे कर रही है, 60% डोनेशन दिया, लेकिन किसका, 20% का, तो बचा कितना होगा, 40% ऑफ टोटल बचा होगा, 40% बचा होगा, वो 40% ऑफ 20/100, वो आपको दिया हुआ है कितना, दिस इज गिवन टू यू व्हाट, मनी लेफ्ट विद हर इज ₹9250, मतलब जो 40% उसके पास रिमेनिंग जो मनी थी उसका बचा है, वो कितना है, 9250। नाउ 40% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 20/100, इसको हम सॉल्व करें टू गेट द इक्वेशन। 0 0 0 0 कैंसिल, सो यू विल गेट x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, सो 9250, ये 100 मल्टीप्लाई में था, सॉरी डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में हो गया, यहाँ 4 × 2 बचा हुआ है, ये दोनों मल्टीप्लाई में हो गए, चलिए डिवाइड में हो जाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? सो नाउ यू विल गेट a value of x. What is our x? What is our x? It is the total money Meenakshi initially had. So you need to solve it to get the value of x. वापस बता रही हूँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तरीका है इस क्वेश्चन को करने से। 50% किसका, x का, तो सपोज उसके पास x रुपीज का, इट्स लाइक x रुपीज थे, 50 + 30 80 हो गए, तो उससे 20% बच गया। अब जो भी वो कर रही है, इसने ये बोला कि डोनेशन दिया किसका, 60% ऑफ x नहीं, 60% of money left with her, it's given in the question, 60% of money left with her, उसके पास कितना बचा, उसके पास 20% of it, तो अब बचा कितना उसके पास, 40%, वो भी किसका बता, 40% of money left with her, कितनी बची उसके पास, 20/100x, वो आपको कितना दिया हुआ है, इतना, जो बचा मनी वो इतना दिया हुआ है। नाउ वी नीड टू सॉल्व इट, 40/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 20/100x इज इक्वल टू दिस,
Now you need to find the value of this x. ये 100 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चला, ये 4 into 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा. Is that clear? Now explaining one more question to you. Question number 9. Now question number 9 is saying a reduction in 10% in the price of mangoes enable Vicky to buy 2 kilogram mangoes for rupees 360. उसने ऐसे नहीं कहा है कि रिडक्शन हुआ तो उसने 2 किलो ज़्यादा खरीद लिए. नो, ही इज सेइंग कि 10% डिक्रीज हो गई तो अब 2 किलो मैंगोज कितने के आ रहे हैं? रुपीज 360 के. सो रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ 2 किलोग्राम मैंगोज is given to you what? It is given to you rupees 360. तो reduced price of 1 किलोग्राम मैंगोज कितनी हो जाएगी? जब 2 किलोग्राम की थी तो 1 किलोग्राम की हो जाएगी ये 180 रुपीज. ठीक है, एनी कंफ्यूजन? Now please pay attention here. 10% रिड्यूस हुआ था और ये रिड्यूस प्राइस है. सपोज आपकी लेट ओरिजिनल प्राइस भी x, पहले प्राइस x थी, उसमें 10% कम हो गया होगा तब जाके रिड्यूस प्राइस आई होगी. इज दैट क्लियर? लेट ओरिजिनल प्राइस भी रुपीज x पर किलोग्राम. ओके, आई एम अज्यूमिंग दिस पर किलोग्राम. तो पहले प्राइस x रही होगी, उसमें 10% कम हुआ होगा तो ये रिड्यूस प्राइस आई होगी. एंड वी नीड टू फाइंड दिस x. सो देखो व्हेन यू विल सॉल्व इट ऐसे लेके सॉल्व करिए बेटा. सो 90x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 180. वी नीड टू फाइंड दिस x. ये 100 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा एंड दिस 90 इज इन मल्टीप्लिकेशन, सो इट विल गो इन डिविजन. सो इट मींस ओरिजिनल प्राइस वाज रुपीस 200 per kilogram. So original price was earlier before reduction it was rupees 200. I hope this is very much clear to you. Okay, is that clear? Again I am explaining you class. Reduced price of 2 kilogram mangoes was 360. So it means reduced price of 1 kilogram mangoes will be 360 upon 2, 180. इन्होंने बोला 10% रिडक्शन हुआ, यानी पहले प्राइस रही होगी x, उसमें से उसका 10% कम हुआ होगा, रिड्यूस हो गई, कम हो गई, तो हमें 180 मिला. We need to find the value of x. So this is 90x upon 100 is equals to 180. So x is equals to 180 into 100 upon 90, which is rupees 200. Is that clear? Alright. So that's it for now, class. I will discuss question number 10 to 14 and to 14. Okay. In our next video. But before that, I want all of you to try these questions by your own. नहीं तो तुम्हें नहीं समझ आएगा. Clear? Alright. So thank you so much.